Next, write an assembly language program. Write an assembly language program which is find out odd number from a given data array. Which is find out odd number from a given data array. Odd number from a given data array. Assuming input number stored in assuming input number stored in assuming input data array stored from assuming input data array stored from 8500H. Length of the data array will be stored in 84008. Odd number will be stored from 8600H. 8600H. Number of odd number will be stored in 8900H. सर लास्ट वाला सेंटेंस क्या बोले? Number of odd number will be stored in 8700H. Everyone is complete? सर लेंथ ऑफ डाटा एरे स्टोर्ड इन उसके बाद कुछ था, उसके बाद ऑड नंबर क्या था? सर लेंथ ऑफ डाटा एरे स्टोर्ड इन Length of the data array stored in 8400H. ओके सर, हो गया. देखो इनपुट दिखाई दे रहा है 8400. There is a number, it's a means what is the meaning of that according to the question? What is the meaning of that according to the questions? Sir, there are 10 elements in the array. There are 10 elements in the array. 10 number hai, right? There are 10 number is there. Next, you know EC, DD, E9.
EC, DD, E9, 5, 6, 35, 85, 8E, 7C, 84 and EF. These are the 10 number. Okay? It's clear to all of you? किसी का कोई डाउट्स है? Any doubts if you have? इसमें किसी का कोई है? समझ शुरू से डाउन क्यों है? नहीं सर, डाउट नहीं है। What is the problem behind it? मन नहीं है तो हम छोड़ देते हैं क्लास, हमारा कोई ये नहीं है। But no answer if you coming from your side, I cannot continue. You should be give the answer. Is it clear to everyone? Yes sir. Yes sir. अभी क्या फाइंड करना है, ऑड और इवन? Odd. ऑड नंबर। ऑड कैसे, कौन सा नंबर को हम लोग ऑड बोलते हैं? Which is not divisible by 2. Not divisible by 2. Last digit equals to 1. हाँ, लास्ट डिजिट इक्वल्स टू भी 1 वो भी है, और नॉट डिविजिबल बाय 2 वो भी है। तो अभी नॉट डिविजिबल बाय 2 देख के हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? सी इज नथिंग बट है, सी मतलब कितना? 12. डिविजिबल बाय 2 और नॉट? 12, yes. Yes sir. Divisible है। तो ये नहीं होगा। डी मतलब 13. तो ये ऑड होगा क्या इवन? 13. Odd है। Odd. तो हम इधर लिख दिया डी। नेक्स्ट E9, 9 क्या होगा? Odd. सो E9। नेक्स्ट 56, Even. 35, Odd. नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 80 पॉसिबल। सर राइट साइड वाला पोर्शन दिख नहीं रहा। ठीक है। ई मतलब 13 सर। ई मतलब 13। 14. अच्छा हाँ 14 मतलब नहीं होगा। सी मतलब 12. 12 नहीं होगा। 4 मतलब नहीं होगा इवन। नेक्स्ट एफ मतलब 15. मतलब इधर होगा, है या यस और नो? यस सर। Yes sir. टोटल कितना ऑड नंबर है? 1 2 3 4 5। इधर होगा 05। इज इट क्लियर? क्वेश्चन सबको पता चला क्या करना है? यही चीज पूरा लास्ट पेज में जाएगा, जो आज बोला ना, जो कैसे लैब को भी लिखना है, इट विल बी स्टोर्ड इन द लास्ट पेज, सेम टू सेम। सर यहाँ पे 8700 क्यों लिखे? One thing. क्वेश्चंस में क्या Yes sir. था? मेरा भी यही डाउट है सर। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में सर 8900। 89 Number of words will be stored in 8700H. 8700H। तो 8700H में लिखा है नंबर ऑफ ऑड नंबर विल बी स्टोर्ड इन 8700H। कितना नंबर ऑफ ऑड नंबर है वो 8700H में स्टोर किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes sir. अभी कैसे करना है? कोई क्लूज दो तो इसमें हम कर सकते हैं। हम तो बोले थे बोलो सर RAR का यूज करके। RAR यूज करके RAR कर सकते हो, RLC RRC कर सकते हो, कुछ भी RAR ही करते हैं।
तो RAR करने से ये वाला का जो लास्ट डिजिट है मतलब LSB बिट जो है वो किधर आएगा? राइट। हम RAR एक बार लिखते हैं, RAR कैसे काम करता है। EC मतलब 11101100, राइट। इसको राइट में रोटेट करेगा, कमिंग इनटू द कैरी फ्लैग। यही तो होगा ना RAR मतलब। हर Yes, एक sir. डेटा एक एक घर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो LSB बिट है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट और D0 बिट, वट एवर यू से, ये जो है मीन्स दिस वन कमिंग इनटू द Carry flag. carry flag. I am in a class. You call me up 1 hour. Okay. So LSD0 and LSB. So these 0 will be coming into the carry flag. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. So after rotations, if carry flag is set, it indicates the number is odd number. If carry flag is reset, then the number is even number. Is it clear to everyone? Yes, sir. Here set means if the carry flag will be 1. In that case, no, sir. Carry flag is set, then number is odd number. Any doubts इसमें? No, sir. कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा जो ऑड नंबर है, तो कैरी फ्लैग सेट होने से हम लोग धरेंगे उसको और पकड़ेंगे उसको ऑड नंबर, नहीं तो उसको इवन नंबर। सो नेक्स्ट माय क्वेश्चंस इज वेरी सिंपल, that what are the step is required. First, these data should be stored in a register. Which register? Say B register. How that is different? कैसे करना है हम बाद में बोल रहे हैं, मगर स्टेप क्या क्या है होना चाहिए। इसको पहले हमको B रजिस्टर में लाना है, क्योंकि एक एक बार काम करेंगे और B को एक डिक्रीज करते जाएंगे, राइट। एक C रजिस्टर लेना है जिसको हमको 0 करना है। क्यों बोलो तो? एक C रजिस्टर लेना है जिसको इनिशियली हमको 0 करना है। बोलो क्यों? एक रजिस्टर को 0 क्यों करना है? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैरी होगा तो उसमें स्टोर करने के कैरी लिए। तो इधर का है ही नहीं सर, कैरी का कोई फंक्शन ही नहीं है सर। कोई काउंटिंग का ये है, 0 हम तभी करते हैं जब काउंटिंग आता है। इधर काउंटिंग का कोई मामला है? कैरी का काउंटिंग का कोई मतलब है कि नहीं है? यस सर है। क्या? इसमें 10 एलिमेंट्स है तो हम लोग को 10 टाइम्स करना होगा। वो तो इसलिए तो बी के अंदर ले लिया, मगर ऐसा कोई चीज है जो जिसको हमको काउंट करना है? मैं तो हिंट दे ही रहा हूं। आउटपुट में सर, बोलो सर जो ऑड आउटपुट में नंबर जो हाँ, जो ऑड नंबर सर, जो आउटपुट में आएगा तो उसको तो काउंट करना पड़ेगा ना सर। कितना ऑड नंबर है आ रहा है? 5 sir. Number of odd number to require to count the number of odd number. That's why I am C making 0. Whenever odd number is coming, I am increase C by 1. Is it clear or not? यस सर।
So basically to increase DD E9, I'm in a class, it's required now, it's required. So number of odd number 1 2 3 4 5, these are the 5 numbers, so I should be count by C. So BC already engaged. Next, this memory location should be point a register pair. Say I am pointing by HL register pair. Okay, this memory location also point by another register pair. Which register pair now is available? Say D. DE. So D by DE. So sir, how I am pointing HL by 8500? What are the instructions? Bolo. LXI H 8500H. Wow, beautiful. LXI, तुम लोग जो बोलोगे आज हम वही प्रोग्राम लिखेंगे. LXI H, 8500H. सर डी को पॉइंट करने के लिए कैसे करेंगे? डी. হ্যাঁ বলেছি, বসতে বলো না. D, how it will be point? बोलो, जैसे HL को किया, D को कैसे करेंगे? सर LXI D, 8600. Very good. LXI D, 8600H. सर थर्ड टर्म, सर 8400 में 0A है, उसको हमको B में लाना है. How it will be done? Move. MBI क्या करेंगे? तो पहले LDA यूज करेंगे क्या? बोलो आशीष. LDA 8400H, then move B, A. Move B, A. Excellent. It's required. But I want to talk to Ankita. Yes, sir. Ankita, whatever you say, I'm just repeat. You just say yes or no. MBI B, 0A you want to do. Am I right? Yes, sir. But तुमको कैसे पता चलेगा 8400 में 0A ही है? ये तो 0A नहीं भी हो सकता है, 05 भी हो सकता है. तो हमको 08400 का कंटेंट लाना है B में. It may be 0A, it may be 05, it may be 06, it may be 02, it may be 0F, it may be 10, it may be 30. Is it clear or not? Yes, sir. That's why MBI is not possible over here. Yes, sir. हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ. देखो ऐसा प्रोग्राम लिखने के तुमको 2 मिनट टाइम लगेगा, पूरा लिख देंगे, मगर उसमें तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. इसलिए तुम लोग जो बोलोगे उसको हम क्रॉस करके समझाएंगे क्यों नहीं होगा, एंड होगा तो क्यों होगा. Is it clear? So LDA 8400, then this 0A will be coming into the accumulator. So move B, A, so it will be coming into the B register. So I am doing the same. LDA 8400H. So in accumulator will be the content of 8400. Then move B, A. Any queries up to this program? सर हाँ. उसमें तो मूव P, 8400H भी तो कर सकते थे. मूव B, 8400H. ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस है? मूव होने से रजिस्टर रजिस्टर ही होता है. मूव होने के बाद कोई मेमोरी लोकेशंस नहीं होता है. मूव मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर ही होगा. यस. तो उसको आप पहले रजिस्टर्ड में किए, देन उसके बाद मूव किया. रजिस्टर एक्यूमुलेटर में किया, उसके बाद एक्यूमुलेटर से बी में लेकर गया. यस. किसी का कोई डाउट्स है? हम आगे बढ़े.
Yes, sir. वेरी गुड सर। अभी सी में 0 0 करना है, कैसे करें? Sir, MBI C,00. वेरी गुड। MVI तुम लोग जो बोलोगे हम वही करेंगे, आज कुछ करेंगे नहीं हम, आज हमारा रेस्ट है। MVI C,00H। Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. Sir, next you know ये जो कंटेंट, इसको RAR कौन सा रजिस्टर का कंटेंट को करता है? RAR करने के लिए कौन सा रजिस्टर का कंटेंट होता है RAR? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। तो ये EC को हमको पहले एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा, यस सर। देन आई कैन डू RAR। Yes, sir. तो EC को एक्यूमुलेटर में कैसे लेकर आएंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्रोग्राम? LDAX LDA. नो सर, आंसर इज Huh? नो, आंसर इज नो। अच्छा हो सर। I already point HL register by 8500। सर मूव कोमा है। अच्छा एक हैं? बोलो। तो मूव कोमा A,M मूव कॉमा नहीं, मूव A, M, A, M। Is it clear? Because HL pointed 8500, so the content of M is nothing but a EC. Content of M is nothing but a content of 8500, that is EC. Is it clear? Is it clear to everyone? तो सर ये तो सबके लिए होगा फिर, हैं? ये तो सबके लिए होगा, सब अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में अलग अलग डेटा हुआ, तो उसको हाँ। एक्यूमुलेटर में लाने के लिए तो मूव वही ये जो कोडिंग लिखे है मूव A, M तो सबके लिए होगा वो चीज उस केस में। हाँ, वो सबके लिए करेंगे। अभी नेक्स्ट बार जब करेंगे INX H कर देंगे, फिर मूव A, M करेंगे, तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा? बोलो। सर 8501 का कंटेंट आ जाएगा। हम Yes, sir. INX H करके फिर मूव A, M करेंगे। सर आपका आवाज कट रहा बहुत, हमको सुनाई नहीं दे रहा अच्छा से। अच्छा, फिर से हम बोल रहे हैं। If I am doing हेलो सर, हाँ, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा हमको सर। बाकी सबको सुनाई नहीं दे रहा है? आप वीडियो एकदम रुक रहा है बीच बीच में। ये मोबाइल का वीडियो वो ठीक Yes, है, sir. मगर इसमें तो हमारा मतलब लैपटॉप में तो हमारा इंटरनेट काफी स्पीड है, अभी दिखा रहा है। प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? सर नेटवर्क येलो नीचे आ रहा है तो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है वीडियो और वॉइस। मेरा ही थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर इधर थोड़ा, तो इसलिए मेरा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, हम वीडियो ऑफ कर देते हैं, ठीक है? वीडियो ऑफ कर देने से प्रॉब्लम क्या है ना, हमको नहीं दिखाने से एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम वीडियो ऑन करते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा था समीर? तुम्हारा आंसर देखो। मूव हम नेक्स्ट बार क्या करेंगे? INX H। If I am doing INX H, so INX H, what are the functions of INX H? HL is equal to HL plus 1. Am I right? Yes, sir. So Yes, HL sir. 8500. So it will be incremented by 1. So HL will be 8501H. एक बढ़ जाएगा। तो जब इसके बाद हम मूव A, M करेंगे तो 8501 का कंटेंट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। इसीलिए तो मैंने LDA नहीं किया, क्योंकि 10 बार LDA करना इस प्रोग्राम के लिए ये नामुमकिन हो जाएगा।
लूप में करने के लिए एलडीए पॉसिबल नहीं होगा। जब 4 डेटा, 5 डेटा, 2 डेटा, 10 डेटा कॉपी करना है और लाना है तो एलडीए इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एलडीए में एक डेटा पॉसिबल है। नेक्स्ट आई एम डूइंग से RAR, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। अभी बोलो कैरी फ्लैग सेट होने से क्या करना है, कैरी फ्लैग सेट ना होने से क्या करना है। हम लोग अभी ऑड नंबर फाइंड कर रहे हैं, ऑड। तो क्या करना है, कब करना है? बोलो, कैरी फ्लैग सेट होने से करना है क्या, कैरी फ्लैग रीसेट होने से करना है? सर रीसेट होने से। हाँ? नो सर, सेट। सर सेट। सेट होने से कैरी फ्लैग सेट होने से हमको दो चीज करना है, एक सी रजिस्टर को बढ़ाना है, एक दूसरा ये नंबर ये मेमोरी लोकेशंस में इसको स्टोर करना है। एम आई राइट? यस सर। और एक भी काम Yes, करना है, डी को एक बढ़ाना है, क्योंकि नेक्स्ट बार जब आएगा तो डेटा इसमें स्टोर होगा। हाँ या ना? तो 3 चीज करना है, एक इसको बढ़ाना है, एक इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, और तीसरा इसको बढ़ाना है, राइट? तो कैरी फ्लैग सेट होने से करना है, तो हम लोग कैरी फ्लैग रीसेट होने से जाम कर जाएंगे। JNC कैरी फ्लैग सेट ना होने से जाम करेगा। तो कैरी फ्लैग सेट होने से क्या करेगा? जस्ट सी कैरी फ्लैग सेट होने से क्या करेगा। फर्स्ट तुम लोग लिखो मत अभी, ठीक है, लिखो मत। फर्स्ट STAX D, तो क्या होगा? डी का सर एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर काउंटर इसमें आएगा, डी में आएगा सर। ना ना सर, सर एक्यूमुलेटर कंटेंट का कंटेंट डी रजिस्टर पेयर में आएगा। नो सर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट डी रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन में जाएगा। यस सर। माय आंसर इज क्लियर टू ऑल और नॉट? एक्यूमुलेटर Yes, sir. कंटेंट, बोलो समीर, समीर बोलो। सर मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा वीडियो बार बार। ओके ओके, हम फिर से बोल रहे हैं। हाँ, हम रिपीट कर रहे हैं। STXD का फंक्शंस क्या है? द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, तुम लोग लिखो मत, इसके बाद लिखो मत, हम बोला है कुछ रीजंस है। STXD करने का मतलब है, STXD करने का मतलब है द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी स्टोर्ड इनटू द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन व्हिच इज लोकेटेड बाय डी रजिस्टर पेयर। मतलब डी रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशंस है उस मेमोरी लोकेशंस में एक्यूमुलेटर का कंटेंट जाएगा। Repeat once again, the content of accumulator will be copied into the particular memory location which is located by D register pair. समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आया तो बोलो। आ गया सर। तो ये तो सर सही बोला, मगर ये RAR करने के बाद एक्यूमुलेटर में इसी था, इसी रहेगा। ये तो रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन होने के बाद क्या रहेगा? मान के चलो रहेगा 0 1 1 1 0 1 1 0, ऐसा रहेगा। जो EC है ये तो 7 6 है। हमको तो भेजना चाहिए था EC और DD, ऐसा जो डेटा था उसको भेजना चाहिए था, है या ना? यस सर। ये रोटेशन करने के बाद तो वो डेटा सर अब नहीं रहा, रोटेशन करने के बाद तो डेटा चेंज हो गया। RAR करने के बाद तो एक्यूमुलेटर का EC बोलो DD बोलो कुछ भी बोलो, जो डेटा है सब सारा तो चेंज हो गया। तो अभी डेटा को अभी भेजना है तो कैसे भेज पाएंगे? पुराना पुराना डेटा को हमको लाना है।
समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो नहीं आया। सर क्या पुराना डेटा मतलब क्या बताएं? जो मूव ए कॉमा एम किया तो एक्यूमुलेटर में क्या आया? क्या आया बोलो? सर मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट था हाँ कितना है अभी, कितना है? सर एचएल में जो था हाँ तो एचएल में मूव ए कॉमा एम करने से एक्यूमुलेटर में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम? बोलो। सर ईसी 8500H का जो कंटेंट है इसी वो आएगा सर। सर इसी आएगा, इसी है इसी आएगा। अच्छा फॉर द टाइम बिंग इसी आएगा, हमको भी पता है। मान के चलो डीडी आया है, मतलब सेकंड मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आया है, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर यस। अच्छा डीडी आया तो डीडी को तो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना चाहिए था। यस सर। यस सर। तो ये आरएआर करने के बाद जो डीडी आया था एक्यूमुलेटर, वो डीडी रहेगा? नो सर। डेटा नो तो सर चेंज नहीं हो रहेगा जाएगा सर, सर। डेटा चेंज तो हो जाएगा। रोटेशन हो गया, डेटा तो रोटेशन हो गया, रोटेशन में यस चेंज रोटेशन हो गया। रोटेट। तो हम जो STXD कर रहे हैं तो हमको तो डीडी नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं समझ में आया? यस सर। You know, move a comma m, after move a comma m say accumulator is dd, so उसको स्टोर करना चाहिए था 8600 में, but as we are performing RAR already, so dd is totally changed. dd will be any other values, right? Is it clear or not? यस सर। तो dd चेंज होके कोई अलग वैल्यू हो गया। वेरी गुड। अभी JNC करने के बाद क्या होगा? इधर से जंप कर जाएगा, मगर ये डेटा जो आएगा, मान के चलो कैरी फ्लैग सेट हुआ तो STXD करेंगे तो DD स्टोर नहीं होगा। तो DD लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? RAR किया तो इधर RAL करना पड़ेगा, उल्टा रोटेशन, तब फिर से आ जाएगा DD। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। इधर RAL जब यहाँ पे RAR वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद तो दूसरा डेटा आएगा, ठीक है, देन फिर जंप करने के बाद STX जो है उसमें फिर पुराना डेटा लाने खोज रहे हैं। हाँ पुराना नहीं तो डीडी को तो हमको स्टोर करना है। हमको डीडी स्टोर ना करके कोई दूसरा डेटा स्टोर करके फायदा क्या है? एग्जांपल के साथ बोले, मान के चलो मतलब पहले आगे जा रहे हैं फिर देन पीछे। मान के चलो डीडी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी को मैंने डीडी कर दिया और डीडी को मैंने इसी कर दिया, ये तो हम कर ही सकते हैं ना? यस सर कर सकते। अभी एक्यूमुलेटर में मान के चलो डीडी है। इज इट क्लियर? यस सर। एक्यूमुलेटर में डीडी है, बाइनरी में बोलो 1101 1101। मान के चलो कैरी फ्लैग पहले से कुछ नहीं है तो 0 ही है, सब शिफ्ट करेगा एक घर, तो क्या रहेगा? 011011110 कैरी फ्लैग 1, मतलब क्या हो गया? 6, मतलब क्या हो गया? E 6 ही हुआ। तो हमको 8600 में क्या 6 स्टोर करना है? नो सर। क्या स्टोर करना है? डीडी का करना। ये इंस्ट्रक्शंस करेंगे हम STXD, तो हमारे पास तो स्टोर होगा 6 ही, जो कि ना RAR के बाद मिला था, जो RAR के बाद मिला था। यस सर। तो हमको तो ये स्टोर करने से नहीं होगा, राइट? यस सर। हमको इधर इसको रिवर्स रोटेशन करना है, जैसे रैल करना है। रैल करने से क्या होगा? फिर से रिवर्स रोटेशन होगा। रैल करने से क्या होगा? फिर से रिवर्स रोटेशन होगा।
1 1 it's 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 yes ये 1 इधर चला जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, हाँ या ना? yes sir मतलब डी डी, तो रेल करने से फिर से हमको वापस हमारा डीडी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। yes sir yes sir और एक कम करने से मिलेगा, वो क्या है? हम तो एक बोल दिया, अभी तुम दूसरा बोलो। आशीष, उम्मीद है तुमसे। देखो RRC आरआरसी नहीं है, आरआरसी आरएल तो एक ही चीज है, आरएलसी बोल सकते हो, आरएलसी बोल सकते हो, मगर आरएलसी करने से नहीं होगा, इसको आरएआर किया तो आरएल ही करना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। उत्सव यस सर। बोलो कुछ। रिया कुमारी 16D मतलब D2D मतलब लेटरल एंट्री करके आया है, मतलब पूरा माइक्रोप्रोसेसर हमसे अच्छा जानता है। सर रिया नहीं कुमारी था बोलो। सर सिलेबस में सर। क्या बोल रहे हो समीन, हमको सर हम झूठ खुद बोलो। D2D करके आ रहे हैं सर, हमको नहीं पता रहे सर। सिलेबस में था ये सब, माइक्रोप्रोसेसर नहीं था। C++ प्रोग्रामिंग पढ़े थे सर, वो सारा चीज किया हुआ, बट ये सब 8085 टोटली तो न्यू था माइक्रोप्रोसेसर। नहीं था सर, ये सब नहीं था। हम लोग ये मतलब पुराना सिलेबस जो था ना हैं, उसमें था, बट हम लोग के टाइम जो सेशन था उसमें ये हटा दिया गया था ये चीज को। 6 सेमेस्टर में 850 था शायद। था ना, तो रहना तो चाहिए। Yes, sir. 808 सब 5th सेमेस्टर में था। 6 सेमेस्टर। जो भी है, हमको बोलो। रिया क्या सर है, कुछ क्या रेडियो चला के चला गया? नहीं सर है। तो बोलो। कुछ इंक्रीमेंट करने पर आएगा क्या सर? ना सर। सर ACC यूज कर सकते हैं? हैं? ACC ACC yes sir ADD ACC 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 क्या इंस्ट्रक्शंस? इस तरह सर सॉरी ADC सर, काहे की मेमोरी यूज कर रहे हैं ना ADC सर, तो ADC एडिशन ना, एडिशन नहीं। एडिशन मेमोरी विद बहुत कैरी इजी एक्यूमुलेटर। था, बहुत इजी था, तुम लोग कभी सोचा ही नहीं है। मूव A, M, ये करने से क्या होगा? बोलो। एम का कंटेंट M का कंटेंट मतलब क्या है? वही DD, हम तो अभी DD चेंज नहीं किया, डी तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। यस सर। मूव A, M, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये बहुत टफ था। मूव A, M इधर किया ही है, उसी को इधर कॉपी किया। हम RAL समझाया, मगर क्यों नहीं किया, मूव A, M क्यों किया हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट INX-D, नेक्स्ट INR-C। देखो ये चारों जो स्टेप है, ये चारों जो स्टेप है वो कैरी फ्लैग सेट ना होने से नहीं करेंगे। ये चारों स्टेप, ये चारों स्टेप सिर्फ कैरी फ्लैग सेट होने के लिए। Am I right or wrong? Is it clear to you? ये चारों स्टेप क्या क्या किया, इस मेमोरी लोकेशन में DD स्टोर किया, ये D को एक बढ़ाया, C को एक बढ़ाया, यही किया ये चारों स्टेप में। देखो, Is it clear to all of you?
Is it clear to all of you? Yes, sir. So next sir, इधर से जंप करके इधर आ जाएगा। ये चारों लाइन कैरी फ्लैग सेट ना होने से नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्या करना है हमको, इसको एक बढ़ाना है HL को, क्योंकि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाना है। सो INX H। नेक्स्ट B को एक घटाना है क्योंकि एक बार पूरा ऑपरेशंस कर लिए। DCR चेक करना है जीरो है कि नहीं है। JNZ जंप एट नॉट जीरो, जीरो ना होने से जंप करेगा मूव A, M में। इज इट क्लियर? ये कितना बार घूमेगा ये लूप? ये लूप कितना बार घूमेगा? इधर से जंप करके इधर जाएगा, कितना बार घूमेगा? हाउ मेनी दिस लूप विल बी रिपीट? So 4 times. 4 टाइम। बी का कंटेंट कितना है? 10 है। 10 बार घूमेगा ये लूप। अच्छा 10 बार ये लूप घूमेगा। 10 बार चेक करेगा, 10 बार डेटा पॉजिटिव होगा, ये ऑड होगा तो उधर भेजेगा, नहीं होगा तो रख देगा। इज इट क्लियर? हम आउटपुट के हिसाब से सोच रहे थे। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट ना, तुम जो बोल रहे हो जो 5 होगा तो ये लूप घूमेगा, ये अंदर में आएगा 5 बार, 5 बार इधर से इधर जंप कर जाएगा। अच्छा तो अभी बोलो रिजल्ट क्या क्या स्टोर हो चुका है? STXD किया मतलब ये सारा नंबर स्टोर हो चुका है। Am I right? ये जो सारा नंबर हो चुका है, अभी हमको इसमें स्टोर करना है। ये नंबर है किधर? ये नंबर किधर है? C रजिस्टर में है। देखो जब भी आया C को बढ़ाया तो उसको सिर्फ हमको स्टोर करना है 8700 में। कैसे होगा बोलो? STA बोलो, बोलो STA क्या करेंगे? 8700। वाओ ब्यूटीफुल। बट ये एक्यूमुलेटर कंटेंट जाएगा, ये C का कंटेंट नहीं जाएगा। तो उससे पहले होगा मूव C, पहले मूव करा देंगे फिर होगा मूव A, C। ये C। HLT समझ में आया कि नहीं आया बोलो? समझ में आया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट, ऑड के बदले में इवन होगा तो क्या होगा? ऑड के बदले में इवन होगा तो क्या होगा? तुम लिखो इवन का प्रोग्राम क्या होगा बोलो? अभी नेक्स्ट प्रोग्राम इज इवन नंबर, फाइंड आउट द इवन नंबर। बोलो। JNC की जगह JC लिखेंगे। एग्जैक्टली, JNC की जगह JC स्टार। प्रोग्राम कंप्लीट, इवन नंबर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर।
प्रीति रॉय, हु इज प्रीति रॉय? समझ में आया प्रीति? यस सर। चुपचाप क्यों है? कभी कभी कुछ बोलो। यस सर। नेक्स्ट, पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट। अच्छा, इवन नंबर में ये आउटपुट में क्या चेंजेस होगा बोलो तो? इनपुट तो एक ही रहेगा, इनपुट मान के चलो एक ही है। इवन नंबर में क्या होगा इस आउटपुट में? एक लाइन का आंसर दो ना सर। जो आउटपुट है वो नहीं रहेगा, मतलब उसके अलावा बाकी सब हो जाएगा। सर एक लाइन बोले, जो उधर रह गया वो इधर नहीं, जो इधर था इस छोड़ के बाकी जो सारा रहेगा बाकी सब इधर आ जाएगा। यस सर। अभी हम बोला क्या? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के लिए आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव नंबर क्या कितना से कितना होता है? मैं बोला था कितना बोला पॉजिटिव नंबर? 0 to 7F। 0 to 7F। वेरी गुड। 0 to 7F पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर 80 to FF। वेरी गुड। तो अभी 0 to 7F पॉजिटिव, 80 to FF नेगेटिव। अभी बोलो, तुम बोलो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर क्या क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर क्या क्या है बोलो? पॉजिटिव और जो 7F से छोटा होगा। यस सर। जो 7F से छोटा होगा। यस सर। बोलो बोलो क्या क्या है? 7F से छोटा तो DD 7F से छोटा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। EC नो नहीं, सर, नो सर। EC भी नो नहीं सर। है, EC भी नहीं होगा। E9 नो सर। नो सर। नो। नो सर। 56 यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। दिस वन? यस सर होगा। यस सर ये भी होगा। Again, होगा। होगा। ये भी नहीं होगा, ए भी नो नहीं होगा, सर। ए नो सर। यस नो सर सर। होगा। 7C होगा। सर यस सर होगा। सर होगा सर। तो 7 3, दिस 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। 1 2 एंड 3। इधर होगा 1 2 एंड 3 और इधर होगा इधर होगा 1 2 एंड 3। इधर होगा 0 03। 03। अभी नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में इधर क्या होगा? 07। 07। वो 3 छोड़ के बाकी जो नंबर है सब इधर बैठ जाएगा। यस सर। आई बोलो पॉजिटिव का प्रोग्राम क्या होगा? सोनम कुछ बोलो, चुपचाप होने से कैसे होगा? सर यहाँ पे RAL यूज होगा। RAL यूज होगा। ये RAR के जगह में RAL यूज्ड होगा। वेरी गुड। JC होगा ना JNC होगा? सर पॉजिटिव नंबर के लिए JC होगा। JC होगा। अच्छा, नेगेटिव के लिए क्या होगा? अभी JNC होगा। नेगेटिव के लिए JNC होगा। नेगेटिव के लिए JC तब नहीं होगा, तब JNC होगा, RAL होगा। तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो। 4 प्रोग्राम मैंने करवा दिया इधर। चारों प्रोग्राम लैब कॉपी में लिखना है। सर नेगेटिव के लिए JNC होना है। नेगेटिव के लिए JNC होना है। क्यों? नेगेटिव मतलब कैरी फ्लैग सेट। यस सर। कैरी फ्लैग सेट होने से उल्टा रिवर्स लगाएंगे, JNC होने से जंप कर जाएगा, कैरी फ्लैग होने से काम करेगा। अभी बोलो तो मूव A, M क्यों किए थे? फिर HL वाला A में लाने के लिए। HL वाला नहीं, HL वाला का मेमोरी लोकेशन का कंटेंट ऑफ मैंने तो सिखाया रैल भी कर सकते थे और मूव A, M भी कर सकते थे, मगर मूव A, M का हम प्रेफर किया। क्यों? बुद्धू तुम लोग ना ये 3 इडियट देखो। 3 इडियट देखना तुम लोगों को चाहिए। बहुत देखे हैं सर।
बहुत बार देख के कोई नॉलेज नहीं हुआ तुम लोगों को। वो बुक में क्या बोल दिया एक वर्ड, उसको तुम लोग ढूंढते चला गया। आंसर नजदीक है, सीधा है, बहुत इजी है, मगर तुम लोग जा रहे हो बहुत अंदर में। सर क्या सर इधर आरएल किया, फिर हमको इसको आरएआर करना पड़ेगा। मतलब इधर आरएल करते थे तो फिर आरएल जब करोगे तो इधर आरएआर करना पड़ेगा ना, काट के। समझ में नहीं आया? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आरएआर हो गया आरएल, तब ये इधर आरएल करते थे तो आरएल को काट के हमको आरएआर करना पड़ता था, हाँ या ना? यस सर। किसी का समझ में नहीं आया तो बोलो। हम आरएआर किया इसीलिए हम इधर आरएल किए फॉर ऑड एंड इवन के लिए, बट फॉर पॉजिटिव नेगेटिव ये आरएआर तो नहीं होगा, उसकी जगह में आरएल होगा। तब जब ए आरएल होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? आरएआर करना पड़ेगा, बार बार काटना पड़ेगा, कम काटना पड़ेगा, इसलिए मूव में एम किए थे मैंने। पागल कहेगा सर ये तो सर आप क्वेश्चन अलग अलग रहेगा उसके चलते आपसे यूज किया ना। ऐसे मान लीजिए सिंगल क्वेश्चन रहेगा तो उस टाइम लोग यूज कर सकते थे ना। हाँ इसको कर सकते हो। हम क्या किसी लिए मैंने ये पूछा, मैंने बोला नहीं जो ये नहीं होगा। कोई लॉजिक और इसका आंसर नहीं ना था सर, ये बस हम लोग स्टेप कम करने के लिए आप ऐसा किया। बोलो 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 आशीष। तो कोई स्पेसिफाइड आंसर नहीं है ना सर कि हाँ बस हम लोग मूव कॉमा इसलिए मूव ए कॉमा एम भी कर सकते थे। और अदर क्वेश्चन अगर पॉजिटिव नेगेटिव का अगर पॉजिटिव नेगेटिव का क्वेश्चन आता तो उस टाइम हम लोग कट नहीं कर रहे, इसलिए आप यूज किए ना। ऐसे तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना सर आरएल कर सकते थे, इसीलिए तो मैंने सिखाया भी है, ये दोनों भी कर सकते थे। क्या कि आरएल भी 1 बाइट का था सर, ये भी 1 बाइट वो भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट सर। उसमें तुम हमको ये नहीं कर सकते हो, उसको हमको रोक नहीं सकते हो तुम। यस सर। Is it clear to all of you? Can I proceed for the next? Yes sir. तो चारों प्रोग्राम हो गया। तुम लोगों का होमवर्क है एडिशन ऑफ ऑड नंबर, एडिशन ऑफ इवन नंबर, एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर। These are the 4 program I am given to you for your purpose. Addition of odd, addition of even, addition of positive, addition of negative। मतलब ये सारा तो रहेगा ही रहेगा। एडिशन ऑफ ऑड बोल रहा है, ये सारा तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, 8800 में इसका एडिशन होगा, 8900 में इसका कैरी आएगा। मान के चलो 8800 में एक कितना इसका रिजल्ट जो होगा एडिशन करने के बाद वो रहेगा, 8801 में कैरी आएगा तो कैरी रहेगा। समझ में आया? एडिशन ऑफ ऑड नंबर समझ में आया कि नहीं? सर एक बार फिर से सर। एडिशन ऑफ ऑड नंबर मतलब ये जितना सारा है ये तो करना ही है। इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर आ गया है, ये जो नंबर आ गया है इसको ऐड करना है। ऐड करके 8800, हाँ 8800 में स्टोर करना है। और कैरी जो आएगा उसको 8801 में स्टोर करना है। सिंपल बात है। ये प्रोग्राम एंड एडिशन ऑफ 5 नंबर्स 10 नंबर्स जो मैंने किया, दोनों प्रोग्राम को मर्ज करना है। यस सर। राइट? यस सर। और उधर सर मतलब सारे में ना, इवन में, पॉजिटिव में, सारे में मतलब उधर ही ये सर मेमोरी लोकेशन क्या क्या बोले सर? 8800 और 8801। मतलब इसका इनपुट आउटपुट क्या होगा 8800 में? हम एक कैरी देते हैं, इसका एडिशन करो कितना आ रहा है, DD9 3585 VF। पहले करो A मतलब 15 प्लस 10 25 प्लस 9 25 प्लस 34 प्लस 13 कितना होता है? 47 से हम कितना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? 32 कितना बचेगा? कितना बचेगा?
सर 15F 15 ऐप सर, ऐप बचेगा। हाँ अभी 32 सबस्ट्रैक्ट किया, याद रखना कैरी 2 आया। अभी ई मतलब 14 प्लस 8 पर आर कैरी 2, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 14 24 हो गया, 24 प्लस 3 27 के साथ 14 41 के साथ 13 54 48 सब्ट्रैक्ट करो, 48 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 6 और 8800 में कितना सब्ट्रैक्ट किया? कितना सब्ट्रैक्ट किया सर? यस सर 48 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 16 into how much? 3 सर 3 coming here as a carry। यस सर, इसीलिए मैंने डे 1 में इसका एडिशन सिखाया। हमारा डे 1 क्लास का देखो। हाँ उसमें 2 कैरी था और इसमें बोलो समीर, बोलो। उसमें 2 कैरी था और इसमें सर 1। ना सर 2 कैरी इसके साथ ऐड कर दिया, तुम इसको ऐड करो। देखो मैंने 8 प्लस कर दिया था 10 प्लस 14 मैंने बोला था 24 प्लस 3 सारा ऐड कर आया था। यस सर, सारा ऐड करके ही आया था। अभी 48 सब्ट्रैक्ट किया, 48 सब्ट्रैक्ट किया मतलब 16 into हाउ मच, कितना सब्ट्रैक्ट किया सर? 3 16 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना? वो होगा 3। देखो 3, देखो हमारा फर्स्ट क्लास देखो, मैंने ये एडिशन सिखाया, सिर्फ यही एडिशन सिखाया कि नहीं? यस सर। सो ये तुम लोगों को करना होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एवरीवन इज क्लियर? यस सर। अच्छा और क्या बोले? ठीक है, आज और कुछ नहीं बोल रहे। टुमारो अगेन आई विल बी कमिंग इनटू द प्रोग्राम। ओके, ये जो 4-4-8 प्रोग्राम जो आज कराया, उसको घर में पूरा विथ मेमोरी लोकेशंस विथ हेक्स कोड सारा लिख लेना। मेमोरी लोकेशन विथ हेक्स कोड। इज इट क्लियर? मेमोरी लोकेशन जैसे मान के चलो 8100 से स्टार्ट किए तो एक क्या होगा 8103 ऐसे करके जो लिखना है। हेक्स कोड क्या होगा, मान के चलो LXI H का 21 है तो 21,00,85। इज इट क्लियर? यस सर। और हम ये दे रहे हैं, उसको देख लेना। अच्छा तुम लोग और एक चीज दिखा रहे, मैंने ये इंस्ट्रक्शन सेट को तुमको दिए थे पढ़ने के लिए, कोई देखे हो कि नहीं देखे हो हमको पता नहीं है। थोड़ा इसको देखना, कल हम इसके ऊपर ही इसको दिखा के बोलेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन तुम लोगों को मिला है ना? यस सर मिला है। यस सर है। इसको लिखने भी बोला था कॉपी में। यस सर। उस सब तो यही लिखे हैं। ये पूरा तुम लोग देख के आना नेक्स्ट दिन। क्वेरीज क्या हो रहा है हम देखेंगे, ठीक है? I almost finished next day I will be discuss the instructions, some programming। अभी यही तीन हमारा बचा हुआ है और है एड्रेसिंग मोड।
ठीक है। अच्छा, you can enroll microprocessor courses, all of you, Yes, sir. in NPTEL. NPTEL there is a course microprocessor and microcontroller. All of you enroll. सर दोनों में 2 कोर्स था वहाँ पे। एक एडवांस माइक्रोप्रोसेसर भी है। हाँ सर, कुछ 2 था, एक इंटरफेसिंग करके था। हाँ है, एक दोनों भी कर सकते हो। वो 8086 वो भी हमारा सिलेबस में है, हम पढ़ाएंगे, हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ओके सर। उसके बाद कोई उसको लेकर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ लेना। आंसर भी हम कर दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, मगर आंसर करके हम ये नहीं चाहता है, हम चाहता है यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। हाँ सर, लास्ट एग्जाम तो हम ही लोग को देना है ना। हाँ देना है, और सबसे बड़ा चीज एक सीखने का एक सेटिस्फाइड भी आता है ना, जो हम खुद से कर पाया। और हम जो सिखा रहे हैं इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। यू कैन डू, नो इश्यूज।